નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્વાગત છે આપનો અમારા વિશેષ કાર્યક્રમ તમારો અવાજમાં. હું છું આનંદ બારોટ અને આપ મારી સાથે જોઈ રહ્યા છો કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી. દર્શક મિત્રો, આજનો દિવસ એટલે કે 15મી ઓગસ્ટનો દિવસ એ ભારત માટે, ભારતના દરેક નાગરિક માટે અને સમગ્ર ભારત દેશ માટે ગૌરવનો દિવસ છે. કેમ કે આજથી 76 વર્ષ પહેલાં આપણા આ દેશે આઝાદી મેળવી હતી. આઝાદી મેળવી હતી 200 વર્ષના અંગ્રેજોના શાસનોમાંથી. આઝાદી મેળવી હતી એ અંગ્રેજી હુકુમતમાંથી અને આઝાદી મેળવી હતી એક સ્વતંત્ર દેશ તરીકે. દર્શક મિત્રો, 15મી ઓગસ્ટની જ્યારે વાત આવે છે ત્યારે ચોક્કસ એ વાત આપણે ભૂલતા નથી કે લાખો શહીદોએ પોતાના લોહી રેડ્યા છે ત્યારે આ ભારતને અમૂલ્ય આઝાદી મળી છે. આઝાદી શબ્દ બોલવો ખૂબ જ સરળ છે, પણ જો એના ભૂતકાળમાં જઈએ અને જો એના ભૂતકાળમાં ઝાંખી કરીએ તો લાખો લોકોએ પોતાના લોહી રેડ્યા છે, લાખો લોકોએ પોતાના માથા ઉતારી દીધા છે અને લાખો લોકોએ કહી શકાય કે પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે ત્યારે અમૂલ્ય આઝાદી મળી છે. આઝાદી શબ્દ એક એવો શબ્દ છે કે જે આપણે ફીલ કરી શકીએ છીએ. 200 વર્ષનું અંગ્રેજોનું શાસન, એક હદનું શાસન, સાથે સાથે કહી શકાય કે એક ગુલામશાહી પ્રજા અહીંયા ઊભી કરવામાં આવેલી. અંગ્રેજોએ ન માત્ર શાસન કર્યું છે પણ ભારતીયોને ગુલામ બનાવ્યા હતા. અને આ બધાની વચ્ચે જ્યારે મહાત્મા ગાંધી હોય, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ હોય, નહેરુજી હોય, સુભાષચંદ્ર બોઝ હોય, આઝાદ હોય, ભગતસિંહ હોય, સુખદેવ હોય કે અન્ય શહીદો હોય, જે લોકોએ ભારત માટે બલિદાન આપ્યું છે, કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતીના માધ્યમથી હું એ દરેક વીરોને સલામ કરું છું. કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતીના માધ્યમથી અમારા એમડી શ્રી, અમારો સમગ્ર સ્ટાફ અને આખું અમારું યુનિટ આજે અમારા દરેક દર્શક મિત્રોને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવે છે. 76માં અમારા કહી શકાય આપણા અને આખા ભારતના જે કહી શકાય કે 15મી જે ઓગસ્ટ છે એની સાથે સાથે એમ પણ કહી શકાય છે કે આજનો દિવસ એટલે ગૌરવનો દિવસ, આજનો દિવસ એટલે આઝાદીનો દિવસ, આજનો દિવસ એટલે ભારતને મળેલી એક સ્વતંત્ર ઓળખાણનો દિવસ, આજનો દિવસ એટલે ભારતમાં રહેતા લોકોને હું ભારતીય છું એ કહેવાનો દિવસ, આજનો દિવસ એટલે ભારત માતા કી જય એ કહેવાનો દિવસ, આજનો દિવસ એટલે એ તિરંગાને સલામ કરવાનો દિવસ. આપ જાણો છો એ રીતે કે જ્યારથી ભારત આઝાદ થયું છે ત્યારથી ચોક્કસ કહી શકાય છે કે આપણે આઝાદીનો સ્વાદ ચાખ્યો છે અને દર વર્ષે આપણે લાલ કિલ્લાથી આપણા વડાપ્રધાન શ્રી જે રીતે આખા ભારત દેશને સંબોધન કરે છે એ રીતે ચોક્કસ કહી શકાય છે. ત્યારે આજે મારી સાથે બે એવા વ્યક્તિઓ અહીંયા જોડાઈ ગયા છે કે જેઓએ ભારતને ગૌરવ અપાવે એવી એક એકેડેમી એટલે કે ડિફેન્સ એકેડેમીમાં કામ કર્યું છે, જેમને કહી શકાય કે ભારતની અંદર આઝાદી મળ્યા પછી જે એક સૈન્ય ઊભું થયું ને સૈન્યના એક સૈનિક તરીકે કામ કરેલું છે અને સાથે સાથે એમ કહી શકાય છે કે જેમને ખૂબ જ નજીકથી દુશ્મનોને જોયા છે અને બોર્ડર ઉપર લઈને ભારત માતા કી જય બોલ્યા છે એવા લલનસિંહજી આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. સાથે સાથે રક્ષા વિશેષક પણ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. જયદેવભાઈ જોશી જોડાઈ ગયા છે. ચોક્કસ કેપ્ટન જયદેવ જોશીનું નામ કદાચ કહી શકાય કે આવું કેપ્ટન શબ્દ બોલીએ છીએ ત્યારે હૃદયની અંદર એક જુસ્સો અને જોમ આવી જાય છે. ललन सिंह जी, आपका नाम लेते ही हमारे हृदय में एक स्फूर्ति आ जाती है. आप लोगों ने वो किया है जो कुछ लोगों के सपने होते हैं और आप तो वो जिंदगी जी के आए हो. कैप्टन साहब, સૌથી પહેલો પ્રશ્ન આપને પૂછીશ. આજે 15મી ઓગસ્ટ, 76મો સ્વતંત્ર દિવસ, ભારત અને ભારતીયો માટે ગૌરવનો દિવસ. શું કહેશો આ દિવસ માટે? આપનો અવાજ મ્યુટ આવી રહ્યો છે સર. ખૂબ જ સરસ રીતે આપે પ્રસ્તાવના કરી કે 76મો આજનો આપણો આ સ્વતંત્રતાનો દિવસ જી અને આપણા સૌનો દિવસ જી એ વાત ઉપર જે આપે ભાર મૂક્યો એ પણ ખૂબ કાબિલે દાદ છે. આપણા સૌનો આ દિવસ છે અને આજે એક
વિચાર એ પણ કહેવાનું મન થાય કે આપણને કઈ રીતે સ્વતંત્રતા મળી जी એ જાણવું, સમજવું અને એ શહીદોને નતમસ્તક થઈને સલામી આપવી એ તો જરૂરી છે જ, जी પણ એની સાથે સાથે જરૂરી વધારે એ પણ છે કે શું એવું હતું કે જે આપણે કઈ ભૂલ કરી, जी કઈ આપણી ચૂક થઈ જી. કે આપણે ગુલામ થયા અને લગભગ અલગ અલગ આક્રાંતાઓની નીચે કેટલાય સો વર્ષો, जी जी કદાચ એકાદ હજાર વર્ષથી વધારે અલગ અલગ આક્રાંતાઓની જે આક્રમણની જે નીતિ હતી તેનો ભાગ ભારત બન્યું. પણ જી. આ બધી બાબતોને પાછળ મૂકીને જે સ્વતંત્રતા આપણને મળી છે તે સ્વતંત્રતાને સંજોવી રાખીને વધારે ને વધારે કટિબદ્ધ થવાનો આજનો આ દિવસ છે. આજના દિવસે કોઈ પણ રાજનીતિક વાત કર્યા વગર जी બધા લોકો સહિયારી રીતે જેમ આઝાદી મેળવવા માટે લડ્યા હતા એ જ રીતે આઝાદીને ટકાવી રાખવા માટે આપણે લડતા રહીએ. ત્યારે આપણે લડ્યા એ કદાચ બંદૂક દ્વારા લડવાનું હતું કે પછી ગાંધીજીના સત્યાગ્રહના માર્ગે લડવાનું હતું. जी આજે જે લડવાનું થશે એનું પ્રારૂપ બદલાણું છે. जी કદાચ હવે કોઈ આક્રમણકારીની ફોજ આપણા ઉપર એટેક નહીં કરે, जी પણ વિદેશી કંપનીઓ ચોક્કસ એટેક કરશે, જી. વિદેશી સંસ્કારો ચોક્કસ આવશે, વિદેશી ખાનપાનની વાતો ચોક્કસ આવશે, જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુમાં નહીં પણ લક્ઝરી પ્રોડક્ટ્સમાં પણ વિદેશી વસ્તુઓ આવશે. કેટલાય આપણા દુશ્મનો જેમ કે ચીન એ આપણી આસપાસના કેટલાય પાડોશી દેશોની મદદ લઈને जी અંદર ને અંદર ભારતને ડ્રગ્સ અને એવી બાબતોથી ખોખલું કરશે. जी તો આ બધી વસ્તુઓ સામે લડવાનો સમય, લડવા માટે કટિબદ્ધ થવાનો આ એક અવસર, એટલે આજનો આપણો સ્વતંત્રતા દિવસ. जी जी ललन सिंह जी, आपके पास आना चाहूँगा. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए काश दिल में. बिफोर 76 ईयर्स जब ये एक नारा चला था, एक मुहिम चली थी, और जो भारत के जो वीर जवान शहीद है, जिन्होंने अपने सर कटवा है, जिन्होंने अपने खून से ये आज़ादी शब्द लिखा है. आज हम आज़ाद इसलिए है कि बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है. आज हम आज़ाद इसलिए है कि बहुत सारे लोगों ने अपने घर परिवार को न देखते हुए हिंदुस्तान को देखा है. आज हम आज़ाद इसलिए है कि कोई वीर भगत सिंह या कोई सुखदेव या कोई और अपना घर छोड़ के हिंदुस्तान को अपनी जब भारत माता की जय बोल के अपने प्राणों की आहुति दी है, तब आज जाके हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं. आज 76 ईयर हो गए हमें आज़ाद हुए, लेकिन हम नहीं भूल पाएंगे उन शहीदों को, हम नहीं भूल पाएंगे उनके बलिदानों को, हम नहीं भूल पाएंगे उन लोगों ने जो काम किए हैं. आज हम अपने घर में सुरक्षित इसलिए है क्योंकि वो लोग फांसी पे चढ़े थे. आज हम सुरक्षित इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों के बलिदान दिए हैं. आज केटीवी न्यूज़ गुजराती के माध्यम से कैप्टन जयदेव जी के साथ भी और आप लोगों के साथ भी मैं उन लोगों को सलाम करता हूँ, और उनको ऐसा भी एक संदेश अपने हिसाब से देना चाहता हूँ कि आप तो स्वर्ग में चले गए, लेकिन हिंदुस्तान, जब तक ये हिंदुस्तान का नाम रहेगा तब तक आप लोगों का नाम रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने जो बलिदान दिए हैं उसकी वजह से आज हम जिंदा है. क्या कहेंगे ललन सिंह जी उनके बारे में? कमाल, आपने सब कुछ बता दिया, कैप्टन साहब ने बहुत कुछ बता दिया जी. आन बान और शान से जी जो आज तिरंगा पूरे देश में ही नहीं जी विश्व में लहरा रहा है. 76वें स्वतंत्रता दिवस में हम लोगों ने अपनी कदम रख दी है जी और इस अमृत महोत्सव में हमारा पूरा देश, चाहे वो बच्चा हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी शामिल हैं. मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने कहा है वो बहुत सही है. हम उन बुजुर्गों को, उन अपने पूर्वजों को याद ही नहीं, उन्हें सलूट और नमन करेंगे आपके केटीवी माध्यम से, क्योंकि उन्हीं का देन है कि आज हम इस स्वतंत्र भारत में अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपनी विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं. सबसे खुशी की बात यह है कि 200 साल गुलामी, हालांकि अंग्रेजों ने अपनी धूर्तता और चालाकी बहुत बदतमीजी के साथ किया, लेकिन हमारे बहादुर जिनको आज हम नमन और याद कर रहे हैं, उनका देन हम आज पूरी तौर पे स्वतंत्र हैं और हम अपने देश
अपने लोगों के साथ मिलकर उस आगे की पथ को अपने जारी रख रहे हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो पहले सोने की चिड़िया कही जाती थी, भारत तो हर 4 में तीसरा हिस्सा व्यापारिक केंद्र का भारत का होता था, उसी अग्रसर हम रास्ते पे चल चुके हैं। सवाल एक ही बात का है कि आज ये जो 76वां स्वतंत्रता दिवस है, वो एक खुशी का तो समय है ये, लेकिन हमें इसमें कई चीजें जो आज लाल किले के बाद हमारे प्रधानमंत्री साहब ने लोगों को आह्वान के तौर पे बताया है, अब हम उस गति में अपने आप को कैसे समर्पित करते हैं, अपने आप को कैसे योगदान देते हैं। और आपने एक बात जो हमारे फौजी होने के नाते याद दिलाया है, 1965 ये साउथ एशिया के अंदर हमें सबसे पहली ताकत मिली थी जब हमने पाकिस्तान को शिकस्त दिया था। मैं याद कर सकता हूं, मैं बच्चा था, छोटा था, हो सकता है कि आप लोगों का जन्म नहीं हुआ होगा, तो वहां हमारी जो भारतीय महिलाएं थी, उन्होंने अपनी सोने की कंगन, अपने सिंदूर का जो सुहाग का जो सोने का मंगलसूत्र था, उसको भी बेचकर और उन्होंने हमारे फौज में, हमारे रक्षा में दान दिया था। मैं ये भी कह सकता हूं कि भारत ने इस 75 साल में बहुत अच्छी मतलब नीतिगत फैसले लिए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि साहब धारा 370 हटाए गए कश्मीर से। 1971 में हमारा बांग्लादेश को हम लोगों ने पाकिस्तान से अलग किया। हम ये कह सकते हैं कि हम अपने देश में पोखरण में एक परमाणु अपना एक्सपीरियंस लिया, जिसके लिए दुनिया हमें नाराज हो गई थी, लेकिन वो एक बहुत बड़ा ताकत का इजहार था। इसी तरह से जो देश है उसने हर क्षेत्र में अपने आप में एक ऐसे काम किए हैं जो दुनिया इसको मानती है। मैं ये भी कहना चाहता हूं, चाहे वो आर्थिक हो, न्याय हो, या कार्यपालिका हो, या और भी कोई भी क्षेत्र है, लेकिन भारत लगातार अपने आप में एक दुनिया के अंदर उदाहरण के जी ललन सिंह जी, ये गर्व की बात है, महसूस करने की बात है। और एक विशेषज्ञ पठानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम जब अभी की बात कर रहे हैं पठानी साहब, जो हम कोई पक्ष विपक्ष या किसी कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे, लेकिन जब जो काम जो हमारे शहीदों ने किया है वो तो हम भूल ही नहीं पाएंगे। एक 18 साल का लड़का घर से निकलता है, अपनी माँ को बोल के निकलता है कि मैं शायद वापस आऊं ना आऊं, इस देश में आज़ादी जरूर आएगी। एक महिला घर से निकलती है गांधी जी के साथ और घर पे बोल के जाती है कि आज तो जा रही हूं लेकिन वापस आज़ादी लेकर ही आऊंगी। अपने प्राणों के बलिदान दिए हैं, अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया है पठानी जी, और तब जाके हमें ये विरासत में ये आज़ादी मिली है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों को आज़ादी के अमृत महोत्सव के ऊपर बड़ी बड़ी शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे फख्र है कि भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से पूरी दुनिया को लीड कर रहा है, ये हमारे लिए सबके लिए बड़े गर्व की बात है जी। मैं इसी के साथ ही उन तमाम फ्रीडम फाइटर्स को जिन्होंने देश की आज़ादी को लेने के लिए तकरीबन 200 साल स्ट्रगल किया जी, उनको भी नमन करता हूं, उनको अपनी श्रद्धांजलि भी देता हूं जी। और उसके बाद मैं तमाम आर्म फोर्सेस के जो लोग हैं जिन्होंने, देखिए स्वतंत्रता लेनी एक बड़ी बात, बहुत बड़ी बात थी जी, और उसको बनाए रखना उतना ही इम्पोर्टेंट है जी जी। तो हमारी इस स्वतंत्रता को पिछले 75 साल में जिस तरीके से हमारे जो आर्म फोर्सेस के लोगों ने, आपको पता है कि 1947 में लड़ाई हुई थी, 65 में वॉर हुआ था, 71 में वॉर हुआ था, और उसके बाद कारगिल के ऊपर पाकिस्तान का जो दुस्साहस था, उसको जिस तरीके से इन्होंने उनको नाको चने चबाए, उसकी मिसाल पूरी दुनिया की आर्मी में मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैं उन शहीदों को भी नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ, जिन्होंने देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की बलि दी। अभी बात सारी ये आती है कि हमारे साथ जो कुछ कमियां हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए देश क्या कर रहा है, जबकि हमारी जो सोच है वो ये होनी चाहिए कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं।
और हमारा देश एक युवा देश है जिसमें 65% जो प्रोफाइल है वो युवा का है। इतने अच्छे प्रोफाइल के बाद अगर हम दुनिया में नंबर 1 नहीं बन पाते हैं तो उसके लिए हमें दोबारा सोच विचार करना पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जी। तो अभी मैं इतना ज्यादा नहीं करूंगा, बट ये बोलूंगा कि मैं फौज में रह चुका हूँ, तो उसमें एक बड़ी अच्छी कहीं मैंने पढ़ा हुआ था, जब इंस्क्रिप्शन लगती है कहीं दीवार पे लिखा हो या कहीं माइलस्टोन के ऊपर लिखा होता था कि when you go home tell them and say that for your tomorrow we gave our today। वाओ। so ये उन लोगों की सोच थी, उन लोगों की भावना थी जिसका हमें आने वाली जनरेशन के अंदर ये मैसेज देना चाहिए, और आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं इसके लिए, मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। जी जी जी। क्योंकि जब तक हमारी कमिंग जनरेशन जो है, हमारे जो वीर हैं, उनकी जो उन्होंने जो कारनामे अंजाम किए और जिस तरीके से देश को आजादी हासिल की, उसमें क्या क्या उनको सहन करना पड़ा, कितनी उम्र में, जैसे एक शहीद ने ये भी कहा था कि मेरे पास देने के लिए प्राणों के सिवा कुछ नहीं है, तो वही मैं देश के लिए दे रहा हूँ। क्या बात है। तो ये इस भावना के साथ वो लोग आगे बढ़े थे, और वो भावना आजकल के यूथ में आनी जरूरी है, तभी हमारा देश जो है दुनिया का सबसे सुंदर, शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ देश बने। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया आप जिस तरह से हमें बता रहे। कैप्टन जयदेव, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से भारत जब आज़ाद हुआ था, एक बात ये भी थी कि जो सोने की चिड़िया जिसको हम गिनते थे इस आज़ाद भारत को, वो सोने की चिड़िया को लूट लिया गया था। पूरा बताया जा रहा है कि पूरे हिंदुस्तान को खाली कर दिया था। जब अंग्रेज यहाँ से गए तो कुछ नहीं छोड़ के गए थे, सब कुछ ले लिया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन राजनेताओं को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन दूरंदेशी अंदाज को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस समय के जो लोग थे कि जिनके पास थोड़े भी पैसे थे। उस टाइम पे हम एक पिनअप पॉइंट भी नहीं बना सकते थे, ऐसा हिंदुस्तान था। आज हिंदुस्तान पूरे विश्व में अपनी एक छाप छोड़ रहा है। जो ये 76 ईयर के बाद जो ये हमने सिद्धि हासिल की है, पहले तो नमन में उन लोगों को करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हिंदुस्तान को बिल्डअप किया है, जिन्होंने बहुत सारी मेहनत की है हिंदुस्तान को खड़ा होने में और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में। कैप्टन जयदेव, क्या कहेंगे इसके बारे में? आपने बहुत ही ग्रेटफुली जिन लोगों को याद किया है वो बहुत ही उपयुक्त है, और उसके लिए भी आपको बहुत बहुत हम लोग साधुवाद देते हैं जी कि इनको याद करना जरूरी था। आजादी आ गई, आजादी कोई चमत्कार नहीं था जी। वो कई सालों से मेहनत चल रही थी, पर आजादी आने के बाद एक साथ ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम पर आ गई थी, और वो जिम्मेदारी थी देश को चलाने जी। वो रेल यातायात हो, और रेल यातायात से लेके स्पेस में जाने तक की बात हो, वो उस जमाने में फायर करने वाली वो एक रॉयल एनफील्ड वाली जो राइफल, बोल्ट एक्शन राइफल से लेके जो हमने परमाणु परीक्षण किए वो बात हो, तो ये यात्रा बड़ी लंबी रही है, यात्रा बड़ी कठिन रही है। इस यात्रा में जिन्होंने भी अपना योगदान दिया है, इन सभी को आज याद करने का समय है, और अगले सालों के लिए उनके द्वारा दिए गए जो भी बलिदान है, जो भी मार्गदर्शन है, उस मार्गदर्शन से भारत को फिर से, जो आपने कहा सोने की चिड़िया थी, उस सोने की चिड़िया को जिस तरीके से क्षत विक्षत किया गया, जिस तरीके से लूटा गया, जिस तरीके से भारत की गौरव के ऊपर भी आक्रमण हुआ, वो कैसे हुआ, वो क्या चीजें थी, क्या चीजों ने हमें बांट के रखा, उसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। और उन सब के ऊपर विचार करके ही हम उनका भी तोड़ ढूंढ पाएंगे, और उनका तोड़ ढूंढने के बाद हम फिर से और एक बड़ी गुजराती में આપણે જેને કહીએ એક મોટી છલાંગ જો ભરવી હોય તો તેના માટે આગળ મોટી છલાંગ ભરવી હોય તો એક પગલું પાછળ લેવું પડે। તો આ આત્મમંથનનું એક પગલું પાછળ જો આપણે લઈએ અને એ જ રીતે આપણે હવે મોટી હરણફાળ માટે તૈયાર થઈએ તો એ ખૂબ આવનારા વર્ષો માટે ભારત માટે સારું રહેશે। जी जी जी।
ललन सिंह जी, आपके पास आना चाहूँगा। एक देश ऐसा कि पूरे विश्व में जिसकी छाप है, एक देश ऐसा जो पूरा विश्व जिसकी संस्कृति के बारे में बात करता था, एक देश ऐसा कि जिसकी संस्कृति पूरे विश्व में प्रचलित थी। अंग्रेजों ने सब कुछ लूट लिया, 200 साल में कुछ नहीं रखा उन्होंने। जब लोग यहाँ से जा रहे थे ना, वो मुस्कुरा रहे थे और हिंदुस्तान यहाँ पे रो रहा था। उसका रीज़न ये है कि जो हमारी समृद्धि थी वो तो ये लोग लूट के ले गए थे, बहुत सारे अत्याचार किए हुए। मेरे भारत देश के वासियों ने मार खाए हुए हैं, मेरी बहनों ने, मेरी माताओं ने रौंद दी गई थी उस टाइम पे। अगर हम बात कहे जाए, छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा था इन अंग्रेजों ने। फिर भी एक गांधी, महात्मा गांधी, जिसका नाम लेते हुए आज दिल में भी सुकून हो रहा है। एक छोटी कद वाला इंसान एक छोटी सी लाठी लेके एक ही कपड़ा पहना है। ये गर्व है मुझे कि आज मैं हिंदुस्तानी हूं। ये गर्व है मुझे कि मैं उस देश में पैदा हुआ हूं जहां का एक छोटे कद वाला इंसान भी 200 साल का जो शासन है उसको लात मार के भगा रहा है। मैं उस देश का वासी हूं जिस देश ने कुछ नहीं था अपने पास, लेकिन जो हौसला था, जो हिम्मत थी, उसको लेके आज ये हिंदुस्तान पूरे विश्व में अपनी एक छाप छोड़ रहा है। जो हिंदुस्तान एक पिन पॉइंट नहीं बना सकता था, आज हिंदुस्तान पूरे विश्व में अपने बनाई हुई चीजों को ले दे रहा है और पूरा विश्व हिंदुस्तान के ऊपर आधारित हो रहा है। क्या कहेंगे ललन सिंह जी उसके बारे में? मैं आपके बात को आगे चर्चा बढ़ाऊंगा जरूर, लेकिन पहले मैं आपकी बातों को दम के साथ बोलता हूं। आज लाल किले से ATAGS स्वदेशी तोप जिसे DRDO ने बनाया है, जो 15,000 फीट पे भी अगर कोई दुश्मन है तो उसको नेस्ताबूंद करने की पूरी ताकत रखता है। और उसी से 21 तोपों की आज सलामी दी गई है, जो कि हमारे भारत के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है। मैं इसलिए बोलना चाहूंगा इस बात को दावे के साथ कि आपने बहुत सही कहा। जब ये अंग्रेज 200 साल के बाद जा रहे थे, उन्होंने बड़ी धूर्तता से हमारे संस्कृति, विरासत और हमारी आर्थिक कमर को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन देखिए, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो कि बहुत साधारण से शरीर और बहुत कम कपड़ों में, उन्होंने दुनिया में अहिंसा के माध्यम से ये बता दिया कि देखो हमारे अहिंसा में कितनी दम है। और वही आज भारत का आत्मविश्वास और सबसे बड़ी, जिसको हमारे प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं, आत्मनिर्भर भारत। और इसी का एक उदाहरण जो आज तोपों के साथ हमारी 21 तोपों का सलामी यही बताता है कि जिस चीज को हम आयात करते थे, अब उसको निर्यात के लिए तैयार हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि कुछ बात जरूर है कि पाकिस्तान हमारे भारत से लगभग अपने आप में हार मान चुका है। कारण भी आप देखिए, SCO की मीटिंग 9 देशों की जो हो रही है, उसमें उसका भी देश मैनेजर हरियाणा के अंदर आकर भारत के साथ आतंक विरोधी उसने एक्सरसाइज करना है। ये क्या है? वो उसको कमजोर हम लोगों ने बनाया है, उनमें डर पैदा कर दिया है। और यही कारण है कि पाकिस्तान बिना अभी लड़ाई का ही अपने आप को हार मानने को तैयार है। कभी कहते थे हम जब नौकरी करते थे तो कि हम दिल्ली को पहुंचेंगे। अरे भाई, तुम दिल्ली क्या पहुंचोगे, तुम्हें तो पूरी पाकिस्तान का वजूद ही हम खत्म कर देंगे। ये हम लोग अपने युवा में जब बॉर्डर पे होते थे तो मजाक के तौर पे उनको बोला करते थे। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि हिंदुस्तानी हथियार ये पूरी दुनिया के लिए उदाहरण, और पाकिस्तान और कुछ ऐसे देश जो देश के प्रति लगातार खलल पैदा करना चाहते हैं, उनके ऊपर प्रहार। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आने वाले दिन है, जिसमें मोदी साहब ने अभी तक 9 बार लाल किले से झंडा फहराया है, वो एक दम और एक सशक्त भारत को बनाता है। और कोस्ट गार्ड से लेकर कन्याकुमारी तक और ITBP के 25 चोटी के ऊपर जो आज तिरंगा फहरा है, वो ये बताता है सियाचिन से लेकर भारत के हर विभिन्न क्षेत्रों में
कि अब हमारा देश अपने युवा, जो बताया कैप्टन साहब ने कि 65% लोग अभी युवा हैं, उस ताकत के साथ हमने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष से लेकर, हमने अपनी क्वाड से लेकर अपने देश के सीमाओं तक, और 3 दिन पहले अगर याद हो आनंद भाई, तो रक्षा मंत्री ने एक बयान दिया था कि बहुत सी चीज गोपनीय होती हैं, मत सोचो कि कोई हमारे तरफ नजर उठा देगा। हमने एक ऐसा हाल के दिनों में काम किया है, अगर कोई सुने तो उसकी छाती चौड़ी हो जाएगी। मतलब साफ है, उन्होंने जो इशारा किया, इंसान के लिए इशारा काफी होता है। तो आज देश भर में 75 खत्म और 76 में हमने प्रवेश कर लिया। तो स्वदेशी ब्रह्मोस हो, स्वदेशी हमारा वार पोत हो, या स्वदेशी हमारे और भी क्षेत्रों में संचार से लेकर हर क्षेत्र में कोई भी उपकरण हो, आज देश अपने बेहतरी के तरफ आगे बढ़ रहा है। और लाल किले पे देसी तोप इस चीज का पूरा प्रमाण है। और आनंद भाई, आपने सही कहा कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो हमें दिया, वो किसी भी भारतवासी के लिए छाती चौड़ा करने के लायक है। ठीक है, तुमने जो ले जाना था ले गए, लेकिन आज भारत पूरी तौर पे मजबूत है और उनको नजरों से नजर मिला के वहां भी भारतीय मूल का प्रधानमंत्री बनने के दौर में है, जिसने हमें कई तरह से लूटा, चाहे वो आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक। लेकिन अब हम अंतरराष्ट्रीय माहौल में अपने आप को, चाहे यूक्रेन हो, ताइवान हो, किसी तरह का कोई विवाद हो, लेकिन हम मजबूती से अपने निर्णय पे खड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं। आज भारत माता की जय हर जगह होता नजर आ रहा है, यही इसका कारण है। बहुत अच्छा कैप्टन જયદેવજી, આપની પાસે આવવા માંગીશ। આજે એક એવા વીર શહીદને પણ યાદ કરવાનું મન થાય છે જેને દુનિયા સરદાર કહીને બોલાવતી હતી। એક એવો વ્યક્તિત્વ કે જેને ભારત માટે એટલું બધું બલિદાન આપ્યું છે। જયદેવજી, જો વાત કરવા જઈએ તો 4 ઘર એક સોસાયટીમાં હોય ને, એમને ભેગા કરવા હોય તો આપણે નથી કરી શકતા। સમગ્ર ભારતના જેટલા રજવાડા છે, આ માણસે રજવાડામાં જઈને દરેક જગ્યાએ જઈને દરેક રાજાઓને કન્વિન્સ કર્યા છે અને એક સ્વતંત્ર ભારતનું સ્વપ્ન જોયું છે। અખંડ ભારતનું જેને સ્વપ્ન જોયું છે એવા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતીના માધ્યમથી સલામ કરું છું। આવા વીર શહીદો હતા કે જે લોકોએ ભારતને અખંડ બનાવવા માટે કહી શકાય છે કે અથાક મહેનત કરી છે। આજના જો કોઈ રાજકારણીને જો ઉદાહરણ આપવું હોય તો સરદારનું ઉદાહરણ એટલા માટે આપી શકીશ કેપ્ટન જયદેવજી કે જ્યારે પોતે નિધન પામ્યા છે ત્યારે કહી શકાય કે 3 જ આંકડામાં જેનું બેંક બેલેન્સ હોય, જેના જોડે ખાલી એક ટિફિન અને 2 જોડ કપડાં હોય, આવું જો કોઈ કરી શકે તો એ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જ કરી શકે, બીજું કોઈ કરી ના શકે। શું કહેશો એના વિશે? જે રીતે વાત કરી રહ્યો છું સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની, એક એવું અખંડિત પાત્ર કે જેને ભારતને અખંડ બનાવવાનું કહી શકાય કે જેને મોહિમ ઉપાડ્યું છે, જેને વડાપ્રધાન બનવાનું કહેવામાં આવતા નહીં સ્વીકારતા, અને બીજી વાત કે જેને સત્તા નહીં પણ સમર્પણની જેને ભાવના છે, એવા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતીના માધ્યમથી સલામ કરું છું। સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ એક એવું નામ કે જેને ભારતને અખંડ બનાવ્યું છે, બધા રજવાડાઓને ભેગા કર્યા છે, સાથે સાથે કહી શકાય કે એક ભારતની જેને સ્વપ્ન જોયું છે ને સ્વપ્ન સાકાર કર્યું છે। દર્શક મિત્રો, જો વાત કરવા જઈએ સરદાર પટેલની, જવાહરલાલ નહેરુની, ગાંધીજીની, અન્ય જે રાજકીય નેતાઓ હતા એ વખતના એ લોકોની, તો ચોક્કસ કહી શકાય કે જે સરદારે કામ કર્યું છે, આપણે તો સરદાર કહીને છોડી દઈએ છીએ, પણ કેપ્ટન જયદેવજી જેનું નામ સરદાર છે ને, જેને કામ પણ સરદાર જેવું કર્યું છે, શું કહેશો એના વિશે? ખૂબ સરસ રીતે આપે કાવ્યાત્મક રીતે જે વાત કરી, પણ એકદમ સચોટ આપે વાત કરી છે। અને એ જ રીતે જો કહેવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો એ સરદાર કે જે ખૂબ અસરદાર સરદાર હતા, એવા આપણા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ। વૈશ્વિક ઇતિહાસમાં એ જોવામાં આવ્યું છે કે લોકો બિસ્માર્કનું નામ બહુ સન્માન સાથે લે છે।
એમ કે અને એના માટે એમ કહેવાય છે કે સરદાર પટેલ છે એ ભારતના બિસ્માર્ક હતા. જી 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 હવે બિસ્માર્ક યુરોપમાં બન્યું, જી જી એ ત્યાં થયું. ત્યાંની પરિસ્થિતિ અલગ હતી, ત્યાંની સ્થિતિઓ અલગ હતી, ભારતના ડાયનામિક્સ અલગ હતા. કેટલા નાના નાના રજવાડાઓ હતા, 500 ઉપર જે રજવાડાઓ, લગભગ 1600 ની આસપાસના રજવાડાઓ, એમાંથી મુખ્યત્વે વધારે મોટી સંખ્યાના રજવાડાઓ તો ગુજરાતમાં હતા, નાના નાના રજવાડાઓ, અને દરેક રજવાડાની કોઈ ને કોઈ અલગ માંગ હતી. અને એ બધું તો હોય, પણ હૈદરાબાદને અલગ રાષ્ટ્ર બનવાનું મન થાય. જી જુનાગઢ જેવા, જુનાગઢને જે ચારે તરફથી લેન્ડલોક છે, જી એને પણ પાકિસ્તાનમાં ભળવાનું મન થાય. જમ્મુ કાશ્મીર અવઢવની સ્થિતિમાં રહે, ક્યારેય નક્કી જ ન કરી શકે. જી આવા બધા અઘરા કોયડાઓને પણ ઉકેલવાનું કામ જે કર્યું છે એ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે કર્યું છે. જી જી અને આઝાદી પછી તરત જ જે લડાઈ થઈ પાકિસ્તાનમાં, એમાં પણ ગૃહમંત્રી તરીકે, યસ ચોક્કસપણે રક્ષા મંત્રાલય પણ ત્યારે હતું, અલગ હતું, એ બરાબર છે, પણ એક ગૃહમંત્રી તરીકે કાશ્મીરનો પ્રશ્ન સોલ્વ કરવામાં, ત્યાં બહુ જ જલ્દી કાશ્મીરના રાજા પાસેથી ઓન ધ લેટર ઓફ એક્સેશન સાઇન કરાવવામાં, જી અને પછી ત્યાં સેના મોકલવાનું જે કામ કર્યું સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે, એ તો એકદમ बेनमून છે. અને जैसे थोड़ी देर पहले ललन सिंह जी बता रहे थे कि बॉर्डर के ऊपर किस जज्बे के साथ जवान लड़ता है, तो जैसे ललन सिंह जी ने कहा, उस जज्बे को पैदा करना उस जवान के अंदर, वो काम इस पहली लड़ाई में हुआ. जी जी और इस पहली लड़ाई और बाद में भी सरदार पटेल जैसा एक स्वच्छ, एकदम ही साक्षर, संस्कारी और शौर्य की वंदना करने वाला ऐसा एक व्यक्तित्व जो था, उनके कारण भारत को, भारत की सेना को काफी कुछ सीखने को, सुधार करने को अपने में जरूर मिला. जी जी ललन सिंह जी, अगर कोई हमारे पास कुछ मांगने को आता है तो हम उसको 5 या 10 रुपये देने होते हैं तो 3-4 बार हम सोचते हैं. जयदेव जी, आपको भी बता रहा हूँ, मैं सलाम करता हूँ उन राजाओं को, सलाम करता हूँ उन रियासतों को, सलाम करता हूँ उनके उस विचारों को. करोड़ों रुपए की संपत्ति, अपना पूरा स्टेट, अपनी सब कुछ न्यौछावर कर दिया. क्यों? कि एक स्वतंत्र भारत बन रहा है, एक ऐसा भारत बन रहा है जो भारत अखंड है, जिस भारत का मैं नागरिक बनने जा रहा हूं. बहुत छोटी सी बात है जयदेव जी, ललन सिंह जी, जहां के आप राजा हो वहां की आप प्रजा बनने जा रहे हो. जब एक लोकशाही हो जाती है तो वहां सब प्रजा हो जाती है, वहां कोई राजा नहीं रहता. तो केटीवी न्यूज गुजराती के माध्यम से सलाम करता हूं उन राजाओं को, उन्होंने दिए हुए उन बलिदानों को और उन्होंने की सोच को. जयदेव जी, ललन सिंह जी, जब हमारे पास कोई मांगने को आता है कि मुझे कुछ चाहिए, तो हम क्या दे सकते हैं? हमारे पास अगर 100 रुपये जेब में पड़े हो तो हम 10 रुपये देंगे, वो भी 10 बार सोच के देंगे. जब पूरा इतना करोड़ों रुपये का जो अपना पूरा जो स्टेट बोलते हैं, वो स्टेट हंसते हंसते दे दिया. बहुत सारे राजाओं ने तो हंसते हंसते ऐसा भी बोल दिया कि ये मेरा हिंदुस्तान बन रहा है, इसमें मेरे जैसे 1-2 अगर थोड़ा सा दे देंगे तो कुछ कम नहीं हो जाएगा, लेकिन एक ऐसा हिंदुस्तान बनेगा जो आगे जाके कहेगा भारत माता की जय. क्या कहेंगे ललन सिंह जी उसके बारे में? आनंद भाई, मैं ये बोलना चाहूंगा, ये बहुत आसान नहीं था जी. लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब कितने जबरदस्त दूरदर्शी थे, कितने उनके अंदर प्रशासकीय काबिलियत थी, और वो जज्बा और ताकत और लोगों में कूटनीतिक और राजनीतिक सामंजस्य पैदा करने का कैरेक्टरिस्टिक्स, वही कारण था. और आपने जो कहा वो भी बहुत सही है कि लोगों ने भारत माता के लिए अपनी राजशाही को समर्पित कर दिया, देश एकजुट के नाम पे. लेकिन जो सरदार साहब का जो एक हमारा पुराना इतिहास है, वो ये बताता है कि जो आज भारत हमारे सामने खड़ा है, वो उन्हीं की देन है, चाहे वो हैदराबाद में हो या हरि सिंह जी को अंतिम समय में हो. लेकिन भारत आज जो मजबूती से खड़ा है, अंग्रेजों की चाल से
जो तोड़ना चाहते थे उसका परिणाम वो जानते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की काबिलियत, उनकी जज्बा और उनका एक काम करने का तरीका, वही आज भारत के लिए एक बहुत जबरदस्त हमारे लिए एक उदाहरण है। और मैं आपको आज बताता हूं, 38 साल के बाद एक मेघनाथ ऑपरेशन हुआ था सियाचिन में, और उसमें एक लेस्नाय चंद्रशेखर जिसकी बॉडी अभी मिली है, और 38 साल बाद उनकी जो शव है वो सियाचिन से उनके परिवार को प्रदान करने का कवायद चल रहा है। आपको आश्चर्य होगा कि 38 साल तक वो शहादत उस बर्फ के अंदर दबा हुआ था और देश उनकी खोज कर रहा था और अब वो मिल गए। और 38 साल के बाद उनकी पत्नी और उनकी जो पुत्री है उनको शहीद चंद्रशेखर के परिवार को प्रदान कर दिया जाए। सोचिए, जैसे राजा थे वैसे ही उनका बना हुआ देश का प्रजा और फौजी, जो 38 साल बाद, जैसा आपने कहा कि मैं जा रहा हूं अपने देश के लिए, चाहे रहूं ना रहूं लेकिन तिरंगे में जरूर वापस आऊंगा, चाहे कुछ भी हो, आऊंगा तो गर्व से आऊंगा। और वही शहीद चंद्रशेखर का परिवार अभी महसूस कर रहा होगा। और जब लोग को पता चलेगा आपके माध्यम से, केटीवी के माध्यम से, तो पूरे देश में एक जज्बा आएगा। और हम जो 76वें स्वतंत्रता दिवस में अभी पदार्पण कर चुके हैं उसमें और जोश के साथ काम करने की काबिलियत आएगी। चाहे नेता हो, अभिनेता हो, पत्रकार हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे आपके सलमान खान हो या शाहरुख खान हो या पिक्चर हो, चाहे वो मदर इंडिया हो, चाहे कोई भी शोले हो, लेकिन देश उनको स्थापित किया। चाहे ध्यानचंद हो या हमारे क्रिकेट के तेंदुलकर साहब हो, लेकिन देश ने उनको इतना दिया और उन्होंने जो देश को दिया उसी से हम अपने विश्व में आगे बढ़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारे देश में एक से एक फैसले हुए और नीतिगत निर्णयों पे आज देश आगे की तरफ बढ़ रहा है। और ये बात भी सही है कि योग्यता के बल पे अगर इस देश में लोगों को जगह मिलेगा, जो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने इसे कई बार आज लाल किला में बताया, भ्रष्टाचार से दूर होने के लिए बताया, उन्होंने ये भी बताया कि देश सबसे पहले भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इन सब को खत्म करके हम एक योग्य देश को अपने दुनिया के सामने विश्व गुरु के तौर पे स्थापित कर देंगे। और यही आज हमारी सोच होनी चाहिए और यही सोच से हमारा देश फिर सोने की चिड़िया बनेगी। आपके माध्यम से इसमें बताने में मुझे कोई शक नहीं, क्योंकि मैं फौजी हूं और फौजी का सोच ये होता है कि मन, देश एक होना चाहिए, समर्पण हर वक्त होना चाहिए, जज्बा देश के लिए होना चाहिए। और इसी के साथ केटीवी न्यूज में आज मजा आ गया कि हमें आपने मौका दिया और हम आपके माध्यम से अभिव्यक्ति कर रहे हैं। जी जयदेवजी, आपनी पासे आवा मांगू छू। केटीवी न्यूज़ गुजराती हमेशा ए शहीदोने सलाम करे छे, आप जेवा वीरोने सलाम करे छे। आपे बहु नजीकथी जोयुं छे आ हिंदुस्तानने। हिंदुस्तान ए नथी के जे एसी चेम्बर में बेसीने जोई शकाय। हिंदुस्तान ए नथी के बेसीने वातो करी शकाय। हिंदुस्तान ए नथी के खाली कागळ उपर चितरी शकाय। हिंदुस्तान जोवुं होय तो जता रहो बॉर्डर उपर, एटले खबर पड़े के हिंदुस्तान शुं छे। सलाम करूं छुं ए सैनिकोने। जयदेवजी, आजे छाती आम गर्वथी पोળી થઈ જાય છે અને કહેવાનું મન થાય છે કે ભારત માતા કી જય। હું હિન્દુસ્તાની છું, હું ઘરે શાંતિથી સૂઈ શકું છું કેમ કે મારા દેશનો જવાન ક્યાંક રાતોના ઉજાગરા કરે છે। હું ઘરે મારા પરિવાર સાથે મજા કરી શકું છું કેમ કે મારા દેશના કોઈ જવાન પોતાના પરિવારને છોડીને ક્યાંક દૂર સિયાચીન જેવી જગ્યા ઉપર બેઠો છે। હું મારા મા બાપ કે મારી પત્ની કે મારા દીકરાઓ સાથે હરીફરી શકું છું કેમ કે કોઈ એક જવાને પોતાનો ફરવાનો શોખ છોડી અને મરવાનો જેને ઝોલો પહેર્યો છે એવા આ હિન્દુસ્તાનના સૈનિકોને સલામ કરું છું। કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતીના માધ્યમથી સલામ કરું છું એ વીર જવાનોને। જયદેવજી, વાત કરવી અને વસ્તુ જોવી એમાં બહુ જ બધી મુશ્કેલી હોય છે કેમ કે અમે જે વાતો કરીએ છીએ અને આપ જે ત્યાં આગળ જોઈને આવ્યા છો, એક વાત એ પણ કહેવાનું મન થાય છે કે આ દેશને આઝાદી તો મળી ગઈ
પણ આ આઝાદ દેશને આઝાદ રાખવા માટે આપ જેવા લલનસિંહજી જેવા પઠાણી જેવા જે લોકો છે અમને જે પોતાનું લોહી રેડ્યું છે, પોતાના પરિવારથી દૂર રહીને, પોતાના સગા સંબંધીઓથી દૂર રહીને ભારત માતાની જે સેવા કરી છે, સલામ કરું છું એ વીરોને, આપ જેવા વીરોને કે જે લોકોએ પોતાના ભારત દેશ માટે ક્યાંક ગોળી પણ ખાધી છે. ઘણા બધા શહીદો એવા પણ છે. વાત કરું ગાંધીજીની, અહીંયા ગાંધીજીને યાદ કરવાનું મન એટલા માટે થાય છે કે છેલ્લી ગોળી દેશ માટે ખાધી છે. નોટ ઉપર ફોટો એમ નથી આવતો જયદેવજી. નોટ ઉપર ફોટો લાવવા માટે બલિદાન આપવું પડે છે. મોટા મોટા સ્ટેજ ઉપર જઈને વાયદા અને વચનો આપવા અલગ વાત છે, પણ કોઈ તમારી સામે આંગળી કરે ને છાતી ધરી દેવી અને કહી દેવું કે હિન્દુસ્તાન સામે નજર ઉઠાવતા પહેલા પહેલી ગોળી તારે મને મારવી પડશે. શું કહેશો એના વિશે? ખૂબ જ સાચી વાત કહી આપે અને એકદમ હૃદયને સ્પર્શી જાય તેવી વાત કરી છે. અને એ જજ્બા સાથે જ હું છું, લલનસિંહજી છે, અમારી જેમ બીજા કેટલાય પૂર્વ સૈનિકો હોય, અમે લોકો સૌ એ જ વાતને માનતા હોઈએ છીએ કે થોડુંક બલિદાન આપણા તરફથી, થોડું બલિદાન અમારા તરફથી જો હશે તો તેના કારણે કોટી કોટી આપણા દેશવાસીઓના જીવનમાં સુખાકારી થઈ શકશે, એ સારી રીતે રહી શકશે. થોડા સમય પહેલા આપ હમણાં વાત કરતા હતા કે કેટલાય દેશના રજવાડાઓએ હસતા મોઢે તેમનું સર્વસ્વ અર્પણ કરી દીધું એટલા માટે કે એક સ્વતંત્ર ભારત બની રહ્યું છે. એમાં પણ ગુજરાતના રજવાડાનો જે ઇતિહાસ છે એ એકદમ ઉન્નત છે. કદાચ સૌથી પહેલા રજવાડામાંથી એક હતું ભાવનગર સ્ટેટ, પછી કદાચ ગોંડલ સ્ટેટ, કે જેમણે સૌથી પહેલા કન્ટ્રીબ્યુટ કરવાનું જે કામ થયું એ એમણે કર્યું. ખાલી એટલું નહીં, બીજા રજવાડાઓને પણ સાથે લીધા. અને એક સૈન્ય અધિકારી તરીકે, પૂર્વ સૈન્ય અધિકારી તરીકે એ વાત પણ કહું કે રજવાડાઓએ ખાલી તેમની જમીન અથવા મિલકતો નથી આપી, કેટલાય રજવાડાઓએ તેમની આખી નેટિવ આર્મી, એમનું આખું સૈન્ય એ આપી દીધું. અને એટલા માટે આજે પણ કેટલાય જે પ્યોર રેજિમેન્ટ્સ હતી જે એ સમયના તત્કાલીન રજવાડામાંથી ઇન્ડિયન આર્મીમાં આવી હતી, એમના નામ જે તે રજવાડા સાથે લેવાય છે. આગળ વાત કરીએ અલગ અલગ ક્લાઇમેટિક કન્ડિશન્સમાં કઈ રીતે સૈનિકો કામ કરે છે, આપે વાત કરી તો, અને ભારતને ઓળખવાની આપે વાત કરી તો એક સૈનિક તરીકે અમારા લોકોના એટલા પોસ્ટિંગ એટલી બધી અલગ અલગ જગ્યાઓએ થયા હોય કે જાણે વેધરથી ઇમ્યુન થઈ ગયા હોઈએ. એક તરફ રાજસ્થાનનું તપતું રણ હોય, સપાટ મેદાનો પંજાબના હોય, જમ્મુ કાશ્મીરની પણ અલગ જ વિશેષતાઓ છે. ખીણ પ્રદેશ અલગ છે, વેલીનો પ્રદેશ અલગ છે, જે પ્લેન એરિયા છે અલગ છે, લદ્દાખનું જે સૂખું રણ છે એ અલગ છે, જંગલનો વિસ્તાર અરુણાચલ પ્રદેશનો સુદૂર પૂર્વોત્તર ભાગનો એ અલગ છે, દક્ષિણમાં અને પૂર્વ પશ્ચિમ બંને તરફ જે દરિયાઓની સીમાઓ છે એ અલગ છે. આ બધી જગ્યાએ કામ કરીને નેશનલ ઇન્ટિગ્રેશનનું એક પ્રતીક બની જતા હોઈએ છીએ દરેક અમે સૈનિકો. અને કેટીવી ન્યૂઝના માધ્યમથી આજે જ્યારે આટલી સરસ ચર્ચા થઈ રહી છે, લલનસિંહજી પણ સાથે છે, તો એક સૈનિક તરીકે હૃદયથી વાત કરીએ તો એવી સૈન્ય રેજિમેન્ટ તમને મળશે જ્યાં કોઈ મદ્રાસ રેજિમેન્ટમાં તમિલ ભાષા બોલતો તમને સરદાર મળશે, તો બીજી તરફ તમને એ પણ જોવા મળશે કે મહારાષ્ટ્રનો કોઈ વ્યક્તિ એ કોઈ ગોરખા રેજિમેન્ટ કે અસામ રેજિમેન્ટ કે નાગા રેજિમેન્ટમાં હોય અને ત્યાંની ગોરખાલી બોલતો હોય, જય માં કાલી આયો ગોરખાલી બોલતો હોય. આવું નેશનલ ઇન્ટિગ્રેશન નું પ્રતીક સૈનિકો આપતા હોય છે. અને એ જ સૌ સૈનિકોને આપણે કૃતજ્ઞ થઈને નતમસ્તક થવાનો આજનો આ દિવસ છે, તો આપણે એ વંદન કરવા જ જોઈએ. ललन सिंह जी बहुत अच्छा जयदेव जी ने बताया है कि एक हिंदुस्तान एक हो गया है, न सीमा के यहाँ पे सीमाड़े आ गए हैं, ना कोई भाषा का यहाँ पे प्रतिबंध है, एक हिंदुस्तान एक हो गया है. एक चीज़ याद आती है, एक बार ऐसी तपती बहुत सारी धूप थी, जयदेव जी आपको भी बताना चाहूँगा,
जो आर्मी मैन थे, हमारे आपके कपड़े तो एकदम बहुत प्रियन होते हैं। मुझे देख के ऐसा लगा कि ये इतने जो कपड़े इतने हैवी है, उनको गर्मी नहीं लगती होगी। तो हमारे गांव में एक रिटायर्ड जो एक्समैन थे, उन्होंने जाके मैंने पूछा कि इतने जो हैवी कपड़े हैं उनसे आपको गर्मी नहीं लगती? मुझे गर्व है उस जवाब पे, ललन सिंह जी, जयदेव जी, मुझे गर्व है वो एक्समैन ने जो जवाब दिया था। आज तक मुझे याद है कि आप गर्मी की बात करते हो, यहाँ पे बहुत सारी गर्मी है। मेरे कुछ जवान भाई ऐसे भी है जो माइनस में भी यही कपड़े पहन के वहां पे जीते हैं। एक गर्व की बात है, एक हिंदुस्तानी होने की बात है। एक फौजी ही ऐसा बोल सकता है। मैंने सिर्फ पूछा कि इस गर्मी में, उन्होंने मुझे बता दिया कि ना इस गर्मी में वो ठंड हो, वो पानी के झरने हो, वो डीप पानी में जाने की बात हो, या कहीं लेह लद्दाख की बात हो, या सियाचिन की बात हो, मेरा सैनिक आज भी अखंड है और अखंड रहेगा। ललन सिंह जी क्या कहेंगे इसके बारे में? आपने याद दिला दिया तो बताना भी जरूरी है, कैप्टन साहब भी हैं जी। मुझे याद है, मैं यंगी था ऑफिसर, तो -8 और 9 में था जी। तो मैं जब वहां पे ज्वाइन किया तो हमारा जो गार्ड था वो उसने बताया कि सर 12 बजे के बाद थोड़ा पानी कम पीजिए। मैंने कहा भाई क्या बात हो गया? तो बोला सर 12 बजे के बाद अगर आप पानी ना पिए तो बड़ा फायदे में रहेंगे। मैं 2-3 दिन सोचता रहा, लेकिन उसके ऊपर मेरा कोई असर नहीं हुआ जी। लेकिन तब पता चला कि अगर एक बार भी आप किसी कारण से बाथरूम में चले गए जी। तो आप पूरी रात नहीं सो सकते। ओहो। एक समय ऐसा भी आया जी। जो AK-47 बगल में और ऊपर से नीचे तक यूनिफॉर्म और जो हमारा उसमें बूट होता है जी। जो स्नो से बचाता है उसको भी पहन के सोते थे, क्योंकि नींद नहीं आती थी। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था, हम लोगों ने अपने आप को उसी तरह से ढाल लेते थे। 2 से 4 दिन में समझ जाते थे कि हमें यहाँ कैसे रहना है। आज धीरे धीरे हमारा देश इतनी तरक्की में चला गया कि हमारे रक्षा, हमारे सुरक्षा में जो लोग लगे हुए हैं, जैसे हमारे बेटे अभी लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, वो बताते हैं, उनके पास जाने पर पता चलता है कि जवान से लेकर अधिकारियों तक को बहुत बेहतर उनको सुविधाएं मिल रही हैं, जिसकी आज जरूरत भी है और देश हमें दे रहा है। तो मैं ये मान के चलता हूं, अभी एक और बात आपसे करनी जरूरी है जी। हाल के दिनों में, चाहे वो रजौरी हो, कुलगाम हो, श्रीनगर का इलाका हो, या टारगेट किलिंग जो कश्मीर में अभी एक लड़के को जो प्रवासी मजदूर था उनके साथ किए गए हैं, ये केवल अपने वजूद को ISI हलचल को बढ़ाने के लिए और देश में अव्यवस्थित हालात को बनाने के लिए, और 15 अगस्त से पहले देश में एक तरह से कोशिश नापाक इरादों को, लेकिन हमारी जो सुरक्षा बल, सेना, अर्धसैनिक बल और हमारे सूचना तंत्र आसमान से जमीन तक चौकस, और उनको पूरी तौर पे आज भी किसी तरह का मौका उनको नहीं मिले, उसके लिए पूरी तैयारी के साथ कार्यरत इन सभी को नमस्कार। और जो शहादत भी हुई है रजौरी में या हाल के दिनों में हमारे फौजियों की, अर्धसैनिक बल के लोगों की या राज्य पुलिस की, उन सबको सलूट। और भारत सरकार जिस तरह से अभी नीतिगत फैसला ले रही है, जिस तरह से सिविक एक्शन कर रही है, लोगों में पर्यटन निवेश कश्मीर में बढ़ा रही है, ये सब चीजें अच्छी हो रही हैं। डॉक्टर फैजल जैसे IAS अफसर को फिर से उप सचिव के पद पे नियुक्त करके उनको और एक बार मौका दे रही है। ये सब भारत की बेहतरी की तरफ जा रही है। सब मिला जुला कर 76वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पे जब हम अपने आप को आगे जा रहे हैं, तो हमें इस बात की खुशी है कि हम हर दिन अपने आप में अच्छे तरह से ताकतवर, सशक्त और आगे बढ़ रहे हैं। और 75 साल के अंदर इस यात्रा में सभी का योगदान है। महिलाओं का, सरोजिनी नायडू हो, इंदिरा जी हो, लता मंगेशकर हो, या जो भी, चाहे वो श्रीदेवी पिक्चर में हो, इन सभी के साथ हम दोनों, मर्द और स्त्री दोनों, भारत को मजबूत बना रहे हैं। इसमें भी कोई शक नहीं, और इसमें हमें गर्व भी महसूस हो रहा है।
जी जी, बहुत अच्छी तरह से बताया आपने जयदेव जी। डिबेट हब हमारी पूर्णता की ओर जा रही है। एक छोटा सा संदेश जयदेव जी के हिसाब से पूरे हमारे केटीवी न्यूज़ गुजराती के दर्शक मित्रों को। आनंद जी, केटीवी न्यूज के सभी दर्शकों को एक संदेश अगर आज के दिन देना है तो मैं ये जरूर दूंगा कि हमने स्वतंत्रता के मीठे फल का स्वाद चखा है, पर इस स्वतंत्रता के लिए जो कुर्बानियां हुई है उसके लिए हम अपने आप को अवेयर रखें। और हम क्या करें दैनंदिन जीवन में, वो रास्ते के ऊपर कूड़ा फेंकना हो, कोई व्यसन की बात हो, कोई सामाजिक दूषण की बात हो, ड्रग टेरर की बात हो, कुछ भी हो, दैनंदिन जीवन में राष्ट्रभक्ति करने के जितने भी काम है वो हम करते रहे। अपने आसपास ही अच्छी मिसालें मिलेंगी, उन मिसालों से सीखते रहे। जैसे लल्लन सिंह जी ने अभी बताया कि उनके पुत्र भी अभी वर्दी धारण किए हुए हैं जी। तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी फौज में जुड़ने वाले परिवार भी है, उन सबको नतमस्तक होके प्रणाम करते रहें, हम भी बनते रहें। भगत सिंह अगर हो तो जरूर हो, पर मेरे घर नहीं, मेरे पड़ोसी के घर हो, ऐसा कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोग बोलते हैं जी। उस चीज से बाहर निकल के वॉलंटियर करें, आगे बढ़े, देश की संगठन में, देश की संरक्षण में अपना योगदान दे। ये संदेश मेरे ख्याल से आज के दिन उपयुक्त रहेगा। लल्लन सिंह जी, एक छोटा सा संदेश केटीवी न्यूज़ गुजराती के दर्शक मित्रों के लिए। बस एकदम छोटा, बंधन की ये भारत देश है, अभिनंदन की ये भारत देश है। यहाँ सब कुछ है, हम लोग बड़े मजबूत हैं, जज्बे से भी और अपने प्यार और भाव से भी। केटीवी के माध्यम से भगवान करे आपकी के टीवी का लगातार हमें मौका मिलता रहे और हम आपके माध्यम से देश में अपने अनुभव और फौजी जज्बे को बढ़ाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। जय हिंद। लल्लन सिंह जी, आपको और जयदेव जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और इतना कीमती समय हमें दिया। दर्शक मित्र, ये लल्लन सिंह जी थे, ये जयदेव जी थे, जिन्होंने डिफेंस में काम किया हुआ है, खूब सारी कामगीरी करे છે। ભારત દેશને અખંડ ભારત રાખવામાં જેને મદદ કરી છે। કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતીના માધ્યમથી સલામ કરીએ છીએ દરેક વીર જવાનોને, સલામ કરીએ છીએ દરેક શહીદોને, સલામ કરીએ છીએ માતાઓએ બહેનોને, સલામ કરીએ છીએ એ દરેક એક નાના બાળકને કે જેને ભારતની આઝાદી અપાવવામાં થોડું પણ બલિદાન આપ્યું છે। દર્શક મિત્રો, આપણે શાંતિથી ઘરે સૂઈ રહીએ છીએ। આજે આપણે સુખ સુવિધાઓને, જે આપણું ભૌતિક જે સુખ ભોગવી રહ્યા છે એના પાછળ કોઈએ પોતાના પ્રાણોની આહુતિ આપેલી છે, કોઈએ પોતાનું લોહી રેડેલું છે ને કોઈએ રાતોના ઉજાગરા કર્યા છે, ત્યારે આપણે સ્વતંત્ર ભારતની અંદર જીવી રહ્યા છીએ। આજે 15મી ઓગસ્ટ જ્યારે 76 વર્ષ પૂરા કર્યા હોય અને જ્યારે આપણે ઉજવી રહ્યા હોઈએ ત્યારે ચોક્કસ કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતીના માધ્યમથી દરેક દર્શક મિત્રોને ખૂબ ખૂબ પહેલાં તો શુભેચ્છાઓ। આ ભારત દેશ આવી જ રીતે અખંડ બને, આપણે સૌ સાથે મળીને આ દેશને ખૂબ આગળ વધારીએ, આંતરિક ઝઘડાઓ ભૂલી અને ભારતની સ્વતંત્રતા માટે, ભારતના વિકાસ માટે અને ભારતને વૈશ્વિક સ્તરે એક મહાસત્તા બનાવવા માટે સૌ સાથે મળીને કામ કરીએ। તો કાલે મળીશું એક નવા વિષય સાથે, એક નવા મુદ્દા સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહો કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી। સમસ્યા તમારી, ખબર અમારી। નમસ્કાર।